Hello, welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhat Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Analog and Digital Communication. Dear students, in the last video lecture, we have discussed about phase modulation. So basically, if you look at the concept of phase modulation, then in phase modulation, the instantaneous phase of the carrier signal is changed in accordance with the instantaneous amplitude of the modulating signal. तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है वो टाइम इंस्टेंट पे सिग्नल का फेज भी चेंज होता है. तो यू कैन नोटिस दिस इज अ फेज चेंज. करेक्ट. ये हमारा कैरियर सिग्नल है और उसमें एट द इंस्टेंट व्हेन देयर इज अ चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है. तो जहां पे जो टाइम इंस्टेंट पे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होता है वो इंस्टेंट पे कैरियर सिग्नल के फेज में चेंज आता है. करेक्ट. सो फेज ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंज in accordance with the instantaneous amplitude variation of modulating signal. Similarly, at this time instant t2 again, the phase of the carrier signal is changed because the amplitude is changed from E1 to E2. Correct? Similarly, at time instant when there is a change in amplitude of the modulating signal, correspondingly there is a change in the phase of the carrier signal. You can notice over here. Okay, at this time instant t4 also the amplitude is changed, so there is a phase change. Again at this time instant t5 there is a change in amplitude of the modulating signal, correspondingly there is a change in the phase of the carrier signal. And during the period when the amplitude of the modulating signal is constant, okay, at that time in that duration the phase of the carrier signal do not change. Okay, so this is how the phase modulation is done. We have also derived the mathematical expression of phase modulated signal. Okay, and what is that expression that we derived? So the final expression for the phase modulated signal is E is equal to EC sin omega ct plus MP cos omega mt. Correct. And what is MP? MP is nothing but it is the modulation index for phase modulated signal. It is a modulation index. Modulation index for phase modulated signal. It is a modulation index. Correct. Okay. And its value is given as MP is equal to Kp times Em. Okay, that is directly proportional to the modulation index for phase modulation, or Pm is directly proportional to the amplitude of the modulating signal. Em is the amplitude of the modulating signal, and Kp is the constant of proportionality, and it is also known as a phase deviation constant. Kp is known as a phase deviation constant. Okay, phase deviation constant. It is the phase deviation constant. Correct. Okay, so this thing we discussed in the last class. Now today we are going to discuss about the relationship between frequency and phase modulation. तो बच्चों हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन को सेपरेटली हमने डिस्कस कर लिया. अब हम क्या करें कि दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं. तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन आर ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके, नाउ लेट्स लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन. सो इफ यू रिकॉल द एक्सप्रेशन फॉर द पीएम एंड एफएम, then expression for the phase modulated wave is given by this equation, that is S of t is equal to a cos omega ct plus kp x of t. What is x of t? X of t is our modulating signal. It's not, please not, this is our modulating signal.
x of t is our modulating signal, and kp is basically phase modulation constant. And expression for fm is given as s of t is equal to a cos omega ct plus kf integration 0 to t x of t dt. Again x of t is our modulating signal. So now if we compare these two equations, then there is only one change between these two expressions. What is the change? Here x of t is directly appeared, okay, and here we are the x of t integrated version or integration of x of t is appeared in this expression. मतलब fm वेव जो है और pm वेव जो है उसमें एक ही डिफरेंस है. pm वेव में जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो डायरेक्टली अपीयर होता है, वेयर इन केस ऑफ fm द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज अपीयर्ड आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के इंटीग्रेटेड वर्जन को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. ओके, करेक्ट. इसका मतलब ये हुआ कि हम pm एंड fm के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं. मतलब अगर मेरे पास pm है फेज मॉड्यूलेटर है, सपोज मेरे पास फेज मॉड्यूलेटर है, तो हम उससे fm जनरेट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है तो उससे हम फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, बिकॉज वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन द fm एंड pm. करेक्ट. ओनली वन डिफरेंस इज देयर. in fm the modulating signal is appear directly, in pm the modulating signal is appear directly, where in case of fm the integrated version of the modulated signal is there. Okay, so in pm the phase angle varies linearly with baseband signal x of t. Okay, in pm the phase angle varies linearly with the modulating signal, where in case of fm the phase angle varies linearly with the integral of the baseband signal. Correct. So in fm the phase angle of the carrier signal varies with integral of the modulating signal. Okay, so इसका मतलब ये दो पॉइंट से हम इतना चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि fm can be obtained from pm and vice versa. This is pm. fm can be obtained from pm and converse is also true. मतलब we can obtain fm from pm as well as pm from fm. Now let's look at the strategy for obtaining fm from pm and pm from fm. So first we will discuss about fm using pm. How to generate frequency modulation using phase modulation. तो बेटा कुछ नहीं करना है, ये दोनों इक्वेशन पे फोकस करना है. यहाँ पे देखो, सपोज मेरे पास फेज मॉड्यूलेटर है, ये फेज मॉड्यूलेटर है, दिस इज अ फेज मॉड्यूलेटर. सो लेट मी ड्रॉ ओवर हियर. दिस इज अ फेज मॉड्यूलेटर. फेज मॉड्यूलेटर क्या करेगा? वो फेज मॉड्यूलेटेड वेव जनरेट करेगा. मतलब यहाँ पे हमें पीएम वेव मिलेगा, फेज मॉड्यूलेटेड वेव में और पीएम सिग्नल मिलेगा. और उसके इनपुट्स क्या रहेंगे? इनपुट में क्या रहेंगे? कैरियर सिग्नल एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. तो अगर मैं यहाँ पे कैरियर सिग्नल अप्लाई करूं, एक इनपुट कैरियर और दूसरा मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, तो ये दोनों सिग्नल का यूज करके हमारा फेज मॉड्यूलेटर है वो पीएम सिग्नल जनरेट करेगा. ओके, सो वी विल गेट दिस आउटपुट, that is s of t is equal to a cos omega ct plus kp x of t. Let me write it over here. So what I will get? S of t is equal to AC, that is amplitude of the carrier signal, cos omega ct plus kp x of t. What is x of t? That is our modulating signal basically. और अगर मैं fm का एक्सप्रेशन अब लिखूं यहाँ पे, तो fm का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, that is s of t, very important, s of t is equal to AC cos omega ct plus kf integration 0 to t
एक्स ऑफ टी डी टी, एक्स ऑफ टी डी टी। मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर मैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फेज मॉड्यूलेटर को डायरेक्टली अप्लाई करूंगा, ओके, कैरियर एंड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो मुझे ये फेज मॉड्यूलेटर ये सिग्नल देगा, दैट इज ये आउटपुट मिलेगा, एस ऑफ टी इज इक्वल टू एसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस के पी एक्स ऑफ टी। अगर मुझे फेज मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल चाहिए, अगर मुझे एफएम सिग्नल चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ये इनपुट सिग्नल जो मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया था फेज मॉड्यूलेटर को, उसको अगर मैं इंटीग्रेटेड वर्जन उसका अप्लाई करूं तो मुझे ये पीएम क्या देगा, ये सिग्नल देगा। ये पीएम मुझे क्या देगा, ये सिग्नल देगा। सिर्फ करना क्या है मुझे कि ये जो एक्स ऑफ टी डायरेक्ट अप्लाई किया था फेज मॉड्यूलेटर को, instead of that I have to first integrate the modulating signal, okay, then apply this integrated signal to the phase modulator, I will get the FM signal. So what is the strategy? Very simple. The strategy for obtaining frequency modulated wave from the phase modulated wave is that first we have to integrate the modulating signal, then apply it to the phase modulator. Okay, so instead of directly applying a modulating signal to the phase modulator, if I integrate it first and then apply to the phase modulator, I will get the FM signal. So you can see the complete block diagram of the method for generating FM signal using PM. यहाँ पे फेज मॉड्यूलेटर मेरे पास है और इसका यूज करके मैं FM सिग्नल हमें मिल रहा है। तो सिर्फ चेंज क्या हुआ, जो पीएम में हम डायरेक्टली एक्स ऑफ टी अप्लाई करते थे, अगर मैं एक्स ऑफ टी डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, ओके, तो मुझे पीएम सिग्नल मिलेगा। लेकिन अगर एक्स ऑफ टी का इंटीग्रेटेड वर्जन में अप्लाई करूंगा तो मुझे एफएम मिलेगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड रख दिया। सो फर्स्ट द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक्स ऑफ टी इज पास थ्रू द इंटीग्रेटर and output of the integrator will be applied as one of the input to the phase modulator, okay, and I will get the FM signal as described in this mathematical expression, correct? So this is the method for generating FM using PM. अब अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है और मुझे PM चाहिए, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है और मुझे PM चाहिए, so now we are going to discuss reverse method, that is reverse process, that is phase modulation using FM. मतलब मेरे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है और मुझे फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल चाहिए। तो बच्चों क्या करना है, सिंपल है कि अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को एक्स ऑफ टी अप्लाई करूंगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डायरेक्ट अप्लाई करूंगा मैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। लेट मी राइट इट डाउन, दैट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव, है ना। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को एक इनपुट मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दूंगा और दूसरा कैरियर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एफएम सिग्नल मिलेगा। और वो कैसा होगा, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखता हूं, दैट इज एसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन 0 to t एक्स ऑफ टी डी टी। तो अगर मैं फेज मॉड्यूलेटर को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को मैं एक्स ऑफ टी अप्लाई करूंगा एक इनपुट और दूसरा कैरियर अप्लाई करूंगा, तो मुझे ये सिग्नल आउटपुट में मिलेगा। एंड दिस इज नथिंग बट अवर एफएम सिग्नल, दिस इज अवर एफएम सिग्नल। लेकिन अगर और यहां पे मुझे क्या ऑब्टेन करना है, मुझे पीएम सिग्नल चाहिए, एफएम का यूज करके मुझे पीएम जनरेट करना है। तो पीएम का एक्सप्रेशन क्या है, तो वेरी सिंपल, लेट मी राइट इट ओवर हियर सो इट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो पीएम का सिग्नल क्या होता है, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल ऐसा होता है, एसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस केपी एक्स ऑफ टी, करेक्ट। ये मेरा फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। तो अगर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से मुझे फेज मॉड्यूलेट मतलब ये सिग्नल चाहिए, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, कोई नहीं है। यहां पे क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर क्या देता है कि वो इंटीग्रेटेड वर्जन ऑफ दी
मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आउटपुट में अपीयर होता है, लेकिन फेज मॉड्यूलेशन में मुझे इंटीग्रेटेड वर्जन नहीं चाहिए। फेज मॉड्यूलेशन में वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डायरेक्टली अपीयर होना चाहिए। मतलब क्या करना पड़ेगा कि ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर इसका इंटीग्रेशन करता है, तो मुझे ऑलरेडी अगर मैं इसकी रिवर्स प्रोसेस करके सिग्नल को भेजूं, मतलब ये एक्स ऑफ टी डायरेक्ट अप्लाई करने की जगह पे अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव ऑफ दी एक्स ऑफ टी अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा। तो अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ द एक्स ऑफ टी अप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स ऑफ टी, और इसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटर क्या करेगा, इंटीग्रेशन करेगा। तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल करेंगे। देन व्हाट आई विल गेट एक्स ऑफ टी, करेक्ट, विच इज नथिंग बट अवर रिक्वायर्ड फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो वेरी सिंपल होगा। मतलब अगर आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करना है तो आपको पहले इनपुट जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, और डिफरेंशिएटेड वर्जन ऑफ द modulating signal will be applied as a input to the frequency modulator and we will get the phase modulated signal, correct। तो पहले मैं क्या करूंगा, अगर मुझे phase modulated signal चाहिए from frequency modulation, then I will first we will do the differentiation of the modulating signal, and after passing through the differentiator the output of the differentiator will be given as a input to the frequency modulator and I will get the phase modulation, clear। तो very simple process, okay। ये दोनों जनरेशन FM यूजिंग PM एंड PM यूजिंग FM वो दोनों सिंपल है। सिर्फ आपको ये दोनों जो एक्सप्रेशन है उस पर आप फोकस करेंगे, उनके बीच में जो सिमिलरिटी है वो आइडेंटिफाई करना है, और इसके हिसाब से हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स और फ्रीक्वेंसी FM से PM जनरेट कर सकते हैं और PM से FM जनरेट कर सकते हैं। तो वेरी सिंपल, लेट मी कंक्लूड दिस टॉपिक। तो अगर आपके पास फेज मॉड्यूलेटर है और आपको FM चाहिए तो आपको पहले मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इंटीग्रेटर थ्रू पास करना पड़ेगा, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को इंटीग्रेटर थ्रू पास करना पड़ेगा, एंड output of the integrator that will be given as a input to the phase modulator and we will get the FM signal। अगर मुझे phase modulated signal using frequency modulator चाहिए तो मेरा जो modulating signal है उसको पहले मुझे differentiator through पास करना पड़ेगा, and output of the differentiator will be given as input to the frequency modulator and I will get the phase modulated signal, that is the PM signal। So this is the relationship between फ्रीक्वेंसी एंड फेज मॉड्यूलेशन। इन शॉर्ट, अगर आपके पास एक ही मॉड्यूलेटर है, आपके पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर है, देन यूजिंग दैट फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर वी कैन जनरेट FM एज वेल एज PM। सिमिलरली अगर आपके पास फेज मॉड्यूलेटर है, देन यू कैन जनरेट यूजिंग दैट फेज मॉड्यूलेटर ओनली वी कैन जनरेट FM एज वेल एज PM बाय मेकिंग सम सिंपल चेंजेस, क्लियर, ओके, गुड। नाउ आफ्टर this relationship between this frequency and phase modulation, now let's look at about the FM generation, process of FM generation। so बच्चों, अगर मुझे FM signal चाहिए then what are the different methods for generation of this FM signal। so today we are going to discuss about the methods of FM generation, methods of FM generation। so basically there are two methods for generating FM signal. One is the direct methods and another is the indirect methods। so in direct method we are generating FM signal using the oscillator, using the concept of oscillator, where in case of indirect method we will use the phase modulation to generate the FM। it means we will generate FM from PM, FM from PM, that is the indirect method, and in this case we will directly generate FM, we are not going to generate FM from PM, okay। so that is the direct method and indirect method। indirect method, there are two methods that we have to discuss, one is the reactance modulators and another is the varactor diode modulator। so there are two types of FM modulators that generates the FM signal directly using direct methods. One is the reactance modulator, another is the varactor diode modulator, and in indirect method we will discuss only one method, that is the Armstrong method,
and this method is very IMP for the exam point of view. एग्जाम में आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड आने के चांसेस ज्यादा है. ओके, सो वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस थ्री मेथड्स इन डिटेल. सो लेट फर्स्ट डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट मेथड. ओके, तो हम पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड का कंसेप्ट समझ लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड से फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव कैसे जनरेट होता है. सो बिफोर गोइंग टू दिस नेक्स्ट स्लाइड, लेट मी टेल यू हाउ टू जनरेट FM सिग्नल यूजिंग डायरेक्ट मेथड. तो बच्चों FM वेव क्या है, बेसिकली पहले ये समझ लो, कंसेप्ट समझ लो कि FM वेव क्या है. तो FM वेव इज नथिंग बट इट इज द वन सिग्नल, वन साइनोसॉइडल सिग्नल, ओके, बेसिकली जनरेटेड बाय सम सोर्स, ओके, correct, and its frequency is varied according to some voltage or some signal, that is our FM signal. तो FM सिग्नल बेसिकली क्या है, एक सिग्नल, ये कैरियर सिग्नल है. FM क्या है, कैरियर सिग्नल है. बट कैसा कैरियर सिग्नल, मॉडिफाइड कैरियर. उसमें मॉडिफिकेशन किस में है, उसके फ्रीक्वेंसी वेरिएशन में. और फ्रीक्वेंसी वेरिएशन किसके हिसाब से होता है, तो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन डिपेंड्स ऑन दी एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. इट मीन्स ये हुआ कि अगर मेरे पास एक ऑसिलेटर है, सिंपल एक ऑसिलेटर है, तो ऑसिलेटर क्या करता है बच्चों, रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी, रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड का सिग्नल जनरेट करता है. करेक्ट, ऑसिलेटर का काम क्या है, इट जनरेट्स द सिग्नल्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स ऑफ डिफरेंट शेप्स. ओके, सपोज मान लो कि मेरे पास ये एक ऑसिलेटर है, एक मेरे पास ये ऑसिलेटर है. तो ये ऑसिलेटर क्या करेगा, on its own it generates the sinusoidal signal of some fixed frequency and fixed amplitude. करेक्ट, फिक्स एम्पलीट्यूड फिक्स फ्रीक्वेंसी का एक सिग्नल जनरेट कर दिया. अब ये सिग्नल को मुझे FM बनाना है. FM मतलब, FM क्या होता है, वो भी एक वेव ही है, एक कैरियर सिग्नल है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कोई दूसरे सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज होती है. वो मेरा FM है, कंसेप्ट ऑफ FM है. तो अगर ये जो कैरियर सिग्नल जनरेट हुआ है बाय दिस ऑसिलेटर, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर कोई सिग्नल कंट्रोल करता हो, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, FM सिग्नल हो जाएगा. क्लियर. तो बेटा ये कंसेप्ट है डायरेक्ट मेथड का. तो डायरेक्ट मेथड में यही करना है कि हमारे पास एक ऑसिलेटर होगा, और ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है, ऑसिलेटर जो सिग्नल जनरेट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी उसका जो इनपुट में कोई सिग्नल होगा, वो सिग्नल के एम्पलीट्यूड के हिसाब से वो कंट्रोल होगी. तो वो मेरा FM होगा. सिंपल, ये मेरा ऑसिलेटर है, वो एक सिग्नल जनरेट कर रहा है, और अगर ये सिग्नल जो जनरेट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कोई एक इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड वेरिएशन के हिसाब से अगर वो चेंज होती है, तो वो मेरा FM सिग्नल है. क्लियर. तो ये कंसेप्ट है आपका डायरेक्ट मेथड का. एंड ये ऑसिलेटर जो होता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कौन डिसाइड करता है, पता है, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसमें जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, LNC. तो ऑसिलेटर में LNC होता है, ओके, रिएक्टिव कंपोनेंट्स. तो रिएक्टिव कंपोनेंट्स बेसिकली डिसाइड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द जनरेटेड सिग्नल. ओके, तो मतलब इन शॉर्ट क्या करना है कि जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है ये ऑसिलेटर, उसकी फ्रीक्वेंसी कौन कंट्रोल कर रहा है, डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ LNC. तो अगर आप LNC की वैल्यू, ये जो सिग्नल है इनपुट सिग्नल, वो कंट्रोल करे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी इसके हाथ में आ जाएगी, उसके कंट्रोल में आ जाएगी. एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट मेथड. सो लेट डिस्कस दैट कंसेप्ट. सो इन डायरेक्ट मेथड इट इज ऑल्सो नोन एज अ पैरामीटर वेरिएशन मेथड. द बेसबैंड और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल डायरेक्टली मॉड्यूलेट्स द कैरियर, डायरेक्टली change the frequency of the carrier signal in the simple sense. So carrier signal is generated with the help of oscillator circuits. What is oscillator? That you learn in your previous semesters, semester number 4 in course, that is ACD, analog circuit design. Okay, and what exactly oscillator circuit is? Oscillator circuit is parallel combination of inductor and capacitor. So oscillator circuit use the parallel tune LC circuit. ऐसे कुछ सर्किट होगी. लेट मी शो यू. तो ये आपकी कैपेसिटर हो गया और पैरेलल में इंडक्टर है. जैसे पैरेलल ट्यून सर्किट भी इसको बोलते हैं, और एलसी सर्किट. करेक्ट. ओके,
सो जो फ्रीक्वेंसी ये जनरेट करता है ऑसिलेटर, उसका जो एक्सप्रेशन अगर हम देखें, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दैट इज जनरेटेड बाय द कैरियर, सो कैरियर जनरेशन इज गिवन बाय ओमेगा सी इज इक्वल टू 1/√LC। ओके, तो आप देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है बाय ऑसिलेटर दैट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एल एंड सी। तो हम क्या करें कि ये जो ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर कोई मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से चेंज होती है तो दैट इज अवर एफएम, अवर पर्पज इज सब। सो वी कैन मेक द फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी टू वेरी इन अकॉर्डेंस विद द बेसबैंड और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक्स ऑफ टी इफ एल और सी इज वेरीड अकॉर्डिंग टू एक्स ऑफ टी। मतलब बेसिकली जो आउटपुट जनरेट होता है ऑसिलेटर का, जो आउटपुट जनरेट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है? एल एन सी पे। आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर डिपेंड्स ऑन एल एन सी। तो अगर आपको कैरियर फ्रीक्वेंसी में चेंज लाना है तो आइदर यू कैन चेंज एल और आइदर यू कैन चेंज सी। और अगर मैं ये जो एल एंड सी की वैल्यू जो है उसमें वेरिएशन में मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से अगर मैं लाऊं तो मेरा काम हो जाएगा। तो हमें वही करना है, वी कैन मेक द कैरियर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी टू वेरी इन अकॉर्डेंस विद द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मतलब आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से अगर एल और सी की वैल्यू चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। करेक्ट? सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द डायरेक्ट मेथड। ओके, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो ऑसिलेटर में फ्रीक्वेंसी इज कंट्रोल्ड बाय मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर, एब्रीविएटेड एज VCO। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो ऑसिलेटर में उसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज के हिसाब से कंट्रोल और इनपुट वोल्टेज के हिसाब से कंट्रोल होती है, वैसे ऑसिलेटर को हम बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। ओके, मतलब जो डायरेक्ट मेथड में जो ऑसिलेटर यूज होता है डायरेक्ट एफएम जनरेशन में, उसको हम बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड ऑसिलेटर। क्लियर? ओके, एंड हमने देखा था कि जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उसमें दो मॉड्यूलेटर्स है, वन इज द रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर, अनदर इज द वैरेक्टर डायोड मॉड्यूलेटर। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कस अबाउट द रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड, let's discuss about the method, direct method for generation of FM, that is reactance modulator. Okay, तो डायरेक्ट एफएम जनरेशन में क्या होता है हमने देख लिया। द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल इज चेंज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शनल विद द मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल को हम बेसबैंड सिग्नल भी बोल सकते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोल सकते हैं। एंड इसके लिए हमें कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर। ये भी मैंने आपको बता दिया। ओके, तो हमें बेसिकली एफएम डायरेक्ट मेथड में करना क्या है, हमें सिर्फ VCO चाहिए, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर हमें बनाना है। सो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर कैन बी इंप्लीमेंटेड बाय यूजिंग साइनसोइडल ऑसिलेटर विथ ट्यून सर्किट हैविंग हाई वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, दैट इज Q। मतलब VCO बनाना तो कैसे बना सकते हैं? साइनसोइडल ऑसिलेटर आपने पढ़ के रखा है, आप पढ़ के आए 4th सेमेस्टर में। तो वो साइनसोइडल ऑसिलेटर के साथ अगर मैं ट्यून सर्किट रख दूं, ट्यून सर्किट मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो मेरा VCO बन जाएगा। तो आप देख सकते हो ये फिगर में, ये ट्यून सर्किट है, ऑसिलेटर की ट्यून सर्किट है, दैट इज कैपेसिटर है, उसके पैरेलल में इंडक्टर है। करेक्ट? तो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे कि यहां पे ये जो दो कंपोनेंट, ये फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करते हैं जो कंपोनेंट एल एंड सी, उसकी वैल्यू अगर मैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से चेंज करूं तो मुझे यहां पे एफएम वेव मिलेगा। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, ये जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है, दैट इज चेंज्ड बाय चेंजिंग द रिएक्टिव कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन द ट्यून सर्किट। ट्यून सर्किट में जो रिएक्टिव कंपोनेंट्स है एल एंड सी, ओके, उसको अगर मैं चेंज करूं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से तो मुझे एफएम वेव जनरेट हो जाएगा। So if L or C of tune circuit of an oscillator is changed in accordance with the amplitude of the modulating signal, FM can be obtained across the tune circuit. Simple. तो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइनिंग कंपोनेंट है एल एन सी, जिसको हम रिएक्टिव कंपोनेंट्स बोलते हैं, उसकी वैल्यू अगर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से चेंज होती है तो हमें यहाँ पे
FM मिलेगा अक्रॉस द ट्यून सर्किट। अब बच्चों ये L एंड C की वैल्यू कैसे हम चेंज करेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से वो देखते हैं। तो इसके लिए हमें 3 टर्मिनल या 2 टर्मिनल कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज करना पड़ेगा। सो अ 2 और 3 टर्मिनल डिवाइस इज प्लेस अक्रॉस ट्यून सर्किट। तो आप देख सकते हो ये जो डिवाइस है ना, ये it will be either 2 terminal or 3 terminal device which is placed across in parallel with the tune circuit। and ये कैसा डिवाइस होगा? वेरिएबल रिएक्टेंस डिवाइस। ये जो हम 2 टर्मिनल और 3 टर्मिनल डिवाइस यूज करेंगे वो वेरिएबल रिएक्टेंस, जिसका रिएक्टेंस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से चेंज हो, जिसका रिएक्टेंस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से चेंज हो। सो अ 2 और 3 टर्मिनल डिवाइस इज प्लेस्ड across the tune circuit and the reactance of this device is varied proportional to the modulating signal voltage, okay, and this will vary the frequency of oscillator to produce FM। अगर इसका रिएक्टेंस, ये 2 और 3 टर्मिनल डिवाइस हमने यूज किया, इसका रिएक्टेंस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के हिसाब से चेंज होगा, तो रिएक्टेंस इसका चेंज होगा, तो जो फ्रीक्वेंसी ये जो जनरेट कर रहा है ऑसिलेटर वो भी चेंज होगी, और वो हमारा FM है। एंड एज अ 2 टर्मिनल डिवाइस और 3 टर्मिनल डिवाइस वी कैन यूज FET, that is a field effect transistor और सिंपल ओवर ट्रांजिस्टर और वेरेक्टर डायोड ओके। तो एक सिंपल एक एग्जांपल है, मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हो कि ये डायरेक्ट FM जनरेट करने की एक एग्जांपल है। डायरेक्ट FM जनरेट का मतलब रिएक्टेंस मॉड्यूलेटर का एग्जांपल है। यहाँ पे ये हार्टली ऑसिलेटर है, ये हार्टली ऑसिलेटर है, ये आपका हार्टली ऑसिलेटर है ओके। ये हार्टली ऑसिलेटर के बारे में भी आपने आपके सेमेस्टर 4 में जो आपका एनालॉग सर्किट डिजाइन का कोर्स था उसमें पढ़ा होगा ओके। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द हार्टली ऑसिलेटर ओवर हियर। तो ये जो मैंने ये मार्क किया है जो पोर्शन एरिया ये सर्किट का, वो आपका हार्टली ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर बेसिकली क्या करता है? सिग्नल जनरेट करता है फिक्स फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ओके। तो हार्टली ऑसिलेटर है, और यहाँ पे ये जो कैपेसिटेंस है उसका, ऑसिलेटर का जो कैपेसिटेंस, बेसिकली ऑसिलेटर में क्या होता है? इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो ये इंडक्टर है और ये इसका कैपेसिटेंस, ये C ऑफ टी। तो C ऑफ टी जो है ओके, दैट इज अ कैपेसिटेंस ऑफ दिस ऑसिलेटर प्लस वेरेक्टर डायोड कैपेसिटेंस, प्लस वेरेक्टर डायोड कैपेसिटेंस। मतलब यहाँ पे जो ये C ऑफ टी रिप्रेजेंट करा है वो किसका कैपेसिटेंस है? वो ये वेरेक्टर डायोड जो हमने यूज किया है यहाँ पे एज अ 2 टर्मिनल डिवाइस वी कैन यूज द वेरेक्टर डायोड। तो मैंने यहाँ पे वेरेक्टर डायोड लगाया, तो वेरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस प्लस ये जो आपका ऑसिलेटर है उसका कैपेसिटेंस। तो C ऑफ टी रिप्रेजेंट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द वेरेक्टर डायोड एज वेल एज कैपेसिटेंस ऑफ दिस ऑसिलेटर। So basically यहाँ पे as a 2 terminal device we will use the varactor diode, and varactor diode is always reverse bias, or when the varactor diode is reverse bias it shows capacitance okay, it says capacitive effect। So its capacitance is now depend on the modulating signal applied to it okay, and जो उसका capacitance change होगा that is shown by C of t in this figure। मतलब जैसे जैसे modulating signal जो रिवर्स बायस अप्लाई किया है इसके साथ जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ओके, ये वेरेक्टर डायोड को कैपेसिटेंस को चेंज करेगा, एंड वेरेक्टर डायोड का कैपेसिटेंस जैसे चेंज होगा वैसे इसकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या है? दैट इज Fi ऑफ टी इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L1 प्लस L2 इंटू C ऑफ टी। तो आप देख सकते हो कि ये C ऑफ टी की वैल्यू कौन चेंज करेगा? व्हाट इज C ऑफ टी? C of t is the effective capacitance shown by the varactor diode capacitor plus capacitor of this oscillator। ये ऑसिलेटर का जो कैपेसिटेंस था प्लस कैपेसिटेंस shown by the varactor diode, जो एग्रीगेट कैपेसिटेंस है वो C of t है। मतलब अब वेरेक्टर डायोड में जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया रिवर्स बायस वोल्टेज, वो अगर चेंज होगा तो C ऑफ टी चेंज होगा, C ऑफ टी चेंज होगा तो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ऑसिलेटर इज ऑल्सो चेंज्ड ओके। मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसमें
कि मैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल चेंज कर रहा हूं तो सी ऑफ टी चेंज हो रहा है, सी ऑफ टी चेंज हो रहा है तो आउटपुट सिग्नल जो जनरेट हो रहा है ये ऑसिलेटर से उसकी फ्रीक्वेंसी भी प्रोपोर्शनली वेरी हो रही है एंड दैट इज माय एफएम. क्लियर? ओके, सो व्हाट वी डिस्कस टुडे? वी डिस्कस अबाउट द relationship between FN and PM, and we also started to discuss about the methods for FM generation, that is direct and indirect. And in this class we have discussed about the principle of the direct method, and also we discussed one of the method for generating the FM signal, that is the reactance modulator. Now in the next class we will discuss about this varactor diode modulator and Armstrong method. ओके, सो आई होप कि आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा. लेट्स स्टॉप हियर. विल डिस्कस अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस एंगल मॉड्यूलेशन इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.